کیا خواتین کو جنت میں دنیا والا ہی شوہر ملے گا؟ کیا مردوں کو جنت میں دنیا والی بیوی ہی ملے گی؟ جنت میں والدین سے ملاقات کیسی ہوگی؟ جنت میں میاں بیوی کی زندگی کیسی ہوگی؟ کیا جنت میں حوروں کے ساتھ ہم بستری کرنے سے بچے پیدا ہوں گے یا نہیں؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنت میں میاں بیوی کی زندگی کیسی ہوگی؟ جنت میں حوریں کیسی ہوں گی؟ محترم ناظرین، جنت کے بارے میں جو کچھ بیان کیا جاتا ہے وہ صرف سمجھانے کے لیے ہوتا ہے، ورنہ دنیا کی اعلیٰ ترین چیز کا بھی جنت کی کسی نعمت سے کوئی مقابلہ نہیں۔ جنت کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے بطور انعام بنایا ہے، اور اس جنت میں بہت سے انعامات والی چیزیں رکھی ہیں، جس میں سے آدمی کو جنت میں حور ملے گی۔ لیکن ہماری بہت ساری مسلمان عورتوں کے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے کہ عورتوں کو جنت میں کیا ملے گا؟ کیا عورتوں کو بھی جنت میں ان کے پسند کے مرد ملیں گے؟ اور جو کوئی عورت کنواری مر جائے تو اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ اور جس عورت نے 2، 3 یا 4 شادیاں کی ہوں گی، اس کو جنت میں کس شوہر کے ساتھ رہنے کو ملے گا؟ اور کیا جس طرح دنیا کے اندر شوہر اپنی بیوی سے وقت گزارتا ہے، یعنی ہم بستری کرتا ہے، تو کیا جنت کے اندر بھی شوہر اپنی بیویوں سے اور حوروں سے ہم بستری کرے گا یا نہیں؟ دنیا کی اور جنت کی ہم بستری میں کیا فرق ہوگا؟ کیا وہاں پر بھی عورتیں بچے پیدا کریں گی؟ ان تمام سوالوں کے جواب جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اور آپ کو جنت کی جستجو ضرور پیدا ہوگی۔ جنت میں مردوں کو حوریں ملیں گی تو عورت کو کیا ملے گا؟ محترم ناظرین، دیکھیں، اگر کوئی کنواری بچی ہوگی تو جنتی کسی بھی مرد سے اس کا نکاح کیا جائے گا۔ جیسے کوئی کنوارا مرد فوت ہو گیا تو اس کنوارے شخص سے اس کا نکاح کر دیا جائے گا۔ عموماً ایک سوال پوچھا جاتا ہے کہ اگر کسی کا شوہر جو ہے چرسی، موالی یا مارتا پیٹتا ہے، گالیاں بکتا ہے، تو کیا یہی شوہر ہی جنت میں بھی ہوگا؟ جواب اس کا یہ ہے کہ جی بالکل یہی شوہر جنت میں بھی ساتھ ہوگا، لیکن بڑا اچھے انداز میں، کیونکہ جنت تو بہت ہی خوبصورت اور ہر قسم کی آلائشوں سے پاک ہے۔ جنت میں جہاں چلے جائیں گے تو یہ پریشانیاں نہیں ہوں گی۔ مرد چاہے جیسا بھی ہو، وہ انتہائی خوبصورت ہوگا، وہ بالکل آپ سے محبت کرنے والا، پیار کرنے والا ہوگا، کیونکہ جنت میں کوئی خراب چیز نہیں ہوگی، کوئی بھی چیز آپ کی مرضی کے خلاف نہیں ہوگی۔ جیسا آپ چاہیں گے، جیسا سوچیں گے، ابھی من ہی من میں سوچ رہے ہوں گے، ابھی تصور ہی کر رہے ہوں گے، جیسے ہی تصور سوچ میں بدلے گا، من چاہی چیز پیش کر دی جائے گی۔ کوئی ظاہری گندگی بھی نہیں ہوگی اور باطنی علائشوں سے بھی نہیں ہوگی۔ سب میاں بیوی پیار اور محبت سے رہیں گے۔ کیا جنت میں دنیا والی بیوی ملے گی؟ نیک مسلمان کی بیوی کیا جنت میں بھی اس کی بیوی ہوگی؟ ہاں، انشاءاللہ تعالی، کیوں نہیں؟ وہ لوگوں کو جو نیک ہیں، ان کے ماں باپ، بیوی بچوں کو جنت میں ایک جگہ جمع کر دیں گے۔ اولاد اگر نیک تھی اور ماں باپ اس لیول کے نیک نہیں تھے تو اولاد کی وجہ سے ماں باپ کے درجات کو بھی بلند کر دیا جائے گا۔ محترم ناظرین، عموماً یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ سب عیش و آرام جنت میں تو مردوں کے لیے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ عورتوں کو کیا دے گا؟ جواب اس کا یہ ہے کہ اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے مرد کا مرتبہ اونچا رکھا ہے اور اس کو عورت کا حاکم بنایا ہے، اور عورتوں کو گھر کے اندر رہنے کا حکم دیا ہے۔ اس طرح کے بہت سارے وسوسے اور شکوک و شبہات پیدا کیے جاتے ہیں۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گھر کے باہر کا کام کیا کریں گے اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر کے اندر رہ کر گھر کا کام کیا کریں گی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ان کے اچھے اچھے اعمال کا بدلہ اور انعام دینے کے لیے آخرت میں جو شاندار جگہ تیار کر رکھی ہے اس کا نام جنت ہے۔ جنت میں ہر طرح کے عیش و آرام کی چیزیں موجود ہیں۔ سونے، چاندی اور موتی جواہرات کے لمبے چوڑے اور اونچے اونچے محل بنے ہوئے ہیں، اور جگہ جگہ ریشمی کپڑوں کے خوبصورت خیمے لگے ہوئے ہیں۔ ہر طرف طرح طرح کے مزیدار پھلوں کے ہرے بھرے درختوں کے باغیچے ہیں، اور ان باغیچوں میں میٹھے پانی کی ہائی کوالٹی دودھ اور اوریجنل شہد اور پاک شراب کی نہریں بہہ رہی ہیں۔ قسم قسم کے بہترین کھانے اور طرح طرح کے پھل فروٹ صاف ستھرے اور چمکدار برتنوں میں تیار کر رکھے ہیں۔ اچھی کوالٹی کے ریشمی ڈریس اور ستاروں سے
बढ़ कर चमकते और चमकाते हुए सोने चांदी मोती और जवाहरात के जेवरात, ऊंचे ऊंचे तख्त और उसके ऊपर चमकदार मखमली गद्दे हैं। ऐशो आराम के लिए दुनिया की औरतें और जन्नत की हुरें हैं जो बहुत ज्यादा हसीन और खूबसूरत है। खिदमत के लिए खूबसूरत लड़के चारों तरफ हाथ बांधे खड़े होंगे। इतना समझ लीजिए कि जन्नत में हर तरह की राहतें और नेमतें तैयार हैं। जन्नत की हर नेमत इतनी अनमोल और इस तरह बेमिसाल है कि न कभी किसी आंख ने देखा होगा, न किसी कान ने सुना होगा, न किसी के दिल में उसके बारे में सोचा होगा। जन्नती लोग बगैर किसी रुकावट के उन सारी नेमतों और लज्जतों से सुकून हासिल करेंगे। और उन सारी नेमतों से बढ़कर जन्नत में सबसे बड़ी नेमत यह है कि अल्लाह ताला का दीदार नसीब होगा। मोहतरम नाज़रीन, जन्नत में ना नींद आएगी, ना कोई बीमार होगा, ना बुढ़ापा आएगा और ना मौत होगी। जन्नती हमेशा हमेशा के लिए जन्नत में रहेंगे और हमेशा तंदुरुस्त और जवान रहेंगे। जन्नती लोग खूब खाएंगे मगर ना उनको पेशाब आएगा, ना ही नाक बहेगी, ना वो थूकेंगे। बस एक डकार आएगी और मुश्क से ज्यादा खुशबूदार पसीना बहेगा और खाना पीना सब हजम हो जाएगा। जन्नती हर किस्म की फिक्र से आजाद और हर तरह के दुख मुसीबत से दूर रहेंगे। हमेशा खुशियां ही खुशियां होंगी और किस्म किस्म की नेमतें और तरह तरह की लज्जतों के मजे उठाएंगे। और जन्नत में कम से कम दर्जे वाले जन्नती को 70 और कुछ रिवायात में 72 हूरें मिलेंगी। इसलिए ये अल्लाह ताला उनसे मजे उठाने के लिए मर्द में भी इस तरह की ताकत पैदा कर देगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक जन्नती मर्द की 100 मर्दों के बराबर ताकत होगी। एक हदीस शरीफ में है कि हजरत अमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या जन्नत वाले लोग भी हम बिस्तरी करेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ, जन्नती लोग भी हम बिस्तरी करेंगे और कभी उनकी ख्वाहिश कम नहीं होगी। एक हदीस शरीफ में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक दिन एक आदमी 100 औरतों से हम बिस्तरी करेगा और हम बिस्तरी से हमल नहीं रुकेगा। एक हदीस शरीफ में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नती लोग औरतों से हम बिस्तरी करेंगे लेकिन औरतें बच्चे पैदा नहीं करेंगी। लेकिन अगर बच्चों की ख्वाहिश की जाए तो एक लम्हे में बच्चा पैदा हो जाएगा। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वहां लोग इसकी ख्वाहिश नहीं करेंगे। मोहतरम नाज़रीन, इंसानों को मिलने वाली हूरें ऐसी होंगी जिनको किसी इंसान ने ना कभी हाथ लगाया होगा, ना हम बिस्तरी की होगी। जन्नती हूर एक ही उम्र की यानी कि 33 साल के बराबर होंगी। हूरों की और दुनिया की औरतों की उम्र जन्नत में 33 साल होगी और वहां पर ना कोई बूढ़ा होगा, ना ही कोई बच्चा होगा, बल्कि सब के सब जवान होंगे। जो बच्चे और बूढ़े इंतकाल कर चुके हैं, अल्लाह ताला उनको जवानी की हालत में जन्नत में दाखिल फरमाएगा। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत में इंसान की 70 बीवियों से शादी की जाएगी। अर्ज किया गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मर्द उन सब औरतों को संभालने की ताकत रखेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मर्द को 100 आदमियों की ताकत दी जाएगी। हजरत हातिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि जन्नत में मोमिन की 72 बीवियों से शादी की जाएगी। 70 जन्नत की औरतें होंगी और 2 दुनिया की औरतें होंगी। कुरान पाक में अल्लाह पाक सूरह तूर में इरशाद फरमाता है, और हम उन जन्नती लोगों की हूरों से शादी कर देंगे। इस तरह अल्लाह ताला सूरह यासीन में इरशाद फरमाता है कि जन्नत वालों का हाल यह है कि वो बेशक उस रोज जन्नत में अपने कामों में खुशहाल होंगे। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसकी तफसीर बयान करते हैं कि इनका काम कंवारियों के पास जाना होगा। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अर्ज किया गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम जन्नत में अपनी बीवियों के पास जा सकेंगे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक मर्द एक दिन में 100 कंवारियों के पास जा सकेगा। और एक हदीस में है कि एक दिन में 100 औरतों के पास जा सकेगा। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे उस जात की कसम जिसने मुझे हक के साथ भेजा है, तुम लोग अपनी बीवियों और अपने घरों को जितना जानते हो उतना जन्नती लोगों की बीवियों और मोहल्लों के बारे में नहीं जानते। जन्नतियों में से हर शख्स अपनी 72 बीवियों के पास जाएगा जिनको अल्लाह ताला ने उन जन्नतियों के लिए पैदा किया होगा, और उनमें से 2 बीवियां इंसानी नस्ल से होंगी और उन 2 बीवियों का उन सब औरतों से ऊंचा मर्तबा होगा। वो इसलिए कि उन औरतों ने दुनिया में अल्लाह ताला की इबादत की होगी। जन्नती मर्द उन 2 औरतों में से एक के पास याकूत के ऊपर ही मंजिल में सोने के पलंग पर दाखिल होगा। उस पलंग को मोतियों का ताज पहनाया गया होगा और उसकी बेगम पर मोटे और पतले रेशम के 70 जोड़े होंगे।
जन्नती उसके पेट पर अपना हाथ रखेगा तो उसके सीने की तरफ से चमड़ी और उसके गोश्त के पीछे से आर पार नजर आएगा और वो अपनी बीवी की पंडली के गोदे को देखता होगा, जिस तरह से तुम में से कोई शख्स याकूत के मोती के सुराख में धागे को देखता है। मर्द के सीने के अंदर का हिस्सा औरत के लिए आईना होगा और औरत के सीने का अंदर का हिस्सा मर्द के लिए आईना होगा। उस बीच वो मर्द उस बीवी के पास होगा और ना उसका मन भरेगा ना उसकी बीवी का मन भरेगा, और उसकी और भी बीवियां होंगी। ये जन्नती उन औरतों में से हर एक के पास एक एक करके जाएगा, या जब भी किसी औरत के पास जाएगा तो वो ये अल्लाह की कसम, जन्नत में आपसे ज्यादा खूबसूरत कोई चीज नहीं और जन्नत में मेरे नजदीक आपसे ज्यादा कोई प्यारी चीज नहीं। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब कोई जन्नती जन्नत में औलाद की ख्वाहिश करेगा तो वो जिस तरह की औलाद चाहेगा फौरन हो जाएगी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, मुझे ये बात मालूम हुई है कि जो शख्स किसी औरत से शादी करता है जन्नत में भी वो औरत उसकी बीवी होगी, लेकिन सच ये है कि उन दोनों की ईमान की हालत में मौत हुई हो और बीवी ने शौहर के मरने के बाद किसी और मर्द से निकाह ना किया हो। हजरत अकरमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की साहबजादी हजरत अस्मा हजरत जुबैर बिन अवाम की बीवी थीं। हजरत जुबैर को तकलीफ देते थे। ये अपने वालिद साहब की खिदमत में शिकायत लेकर आई तो आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उनको तसल्ली देते हुए फरमाया, ऐ मेरी बेटी सब्र करो, अगर किसी औरत का शौहर नेक हो फिर उसका इंतकाल इससे पहले हो जाए और उसकी बीवी ने उसके इंतकाल के बाद किसी और शख्स से निकाह ना किया हो तो अल्लाह ताला उन दोनों मियाँ बीवी को जन्नत में एक साथ कर देगा, यानी वो जन्नत में भी उसी तरह मियाँ बीवी रहेंगे और उनका रिश्ता खत्म नहीं होगा। हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने भी अपनी बीवी से फरमाया था कि अगर तुम ये बात पसंद करती हो कि तुम जन्नत में मेरी बीवी बनो और अल्लाह ताला हम दोनों को जन्नत में मिला दे तो तुम मेरे मरने के बाद दूसरा निकाह ना करना। जन्नत में औरत अपनी दुनिया के आखिरी शौहर की बीवी बनेगी। वो औरत जिसने दुनिया में एक के बाद दूसरे तीसरे या उससे ज्यादा निकाह किए हों और उसके शौहर का इंतकाल होते गए और किसी ने भी तलाक ना दी तो ये ऐसी औरत जन्नत में किसकी बीवी बनेगी। इस बारे में हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, औरत आखिरत में दुनिया के अपने आखिरी शौहर की बीवी बनेगी। और कुछ रिवायत में है कि ऐसी औरत को अख्तियार दिया जाएगा कि वो उन शौहरों में से जिसको चाहे अपना शौहर बना ले। उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो औरत जिसके दुनिया में दो शौहर होते हैं ये औरत भी इंतकाल कर जाती है और उसके दोनों शौहर भी इंतकाल कर जाते हैं और फिर ये सब जन्नत में दाखिल हों तो ये औरत किस शौहर की बीवी बनेगी, पहले की या दूसरे की। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया में उस औरत के साथ दोनों शौहरों में से जो सबसे अच्छा बर्ताव करता था वो उसकी बीवी बनेगी। नेक औरत अगर शादीशुदा है तो जन्नत में अपनी जन्नती शौहरों के साथ रहेगी और शौहर को मिलने वाली हूरों की सरदार होगी। अल्लाह ताला उस औरत को उन सब से ज्यादा खूबसूरत बनाएगा। वो मियाँ बीवी आपस में टूट कर मोहब्बत करने वाले होंगे। अगर औरत कंवारी हो यानी कि उसकी शादी से पहले इंतकाल हो गया हो तो ये शादीशुदा ना हो तो लेकिन उसका शौहर जन्नती ना हो बल्कि वो जहन्नुम में भेज दिया गया हो तो वो औरत जन्नत में जिस मर्द को पसंद करेगी उसके साथ उसका निकाह हो जाएगा। अगर हाँ वहां मौजूद लोगों में से किसी को भी पसंद ना करे तो अल्लाह ताला उसके लिए एक मर्द जन्नत में पैदा फरमाएगा जो उसके साथ निकाह करेगा और अल्लाह ताला आखिरत में दुनिया की औरतों को भी नए सिरे से पैदा करेगा और उनको जन्नत की हूरों से ज्यादा खूबसूरत बनाएगा। अब बाकी रही उसकी ख्वाहिश की, अगर औरत एक वक्त में कई मर्दों को बीवी हो तो ये फितरत के भी खिलाफ है और जन्नत में ये ख्वाहिश पैदा भी नहीं होगी। और जिस तरह दुनिया के अंदर लोग एक दूसरे से हसद और नफरत करते हैं और औरत एक दूसरे से जलती हैं, जन्नत के अंदर यह मामला नहीं होगा कि जन्नत के अंदर इन तमाम चीजों को खत्म कर दिया जाएगा। मोहतरम नाज़रीन, अब हम बात कर लेते हैं कि जन्नत में वालिदैन से मुलाकात कैसे होगी। अहादीस में है कि जब कोई रूह इल्लीजीन में पहुंचती है तो वहां पर मौजूद रूहें उससे मिलने आती हैं और दुनिया में अपने रिश्तेदारों के बारे में मालूम करती हैं। इस तरह से जब कोई इंसान मरने के बाद पहुंचता है तो उसके रिश्तेदार उससे ऐसे मिलते हैं जैसे किसी दूर दराज से आने वाले मुसाफिर से मुलाकात की जाती है और दोनों आपस में मिलकर बहुत खुश होते हैं। इरशाद बारी ताला है, ऐ मेरे बंदो, आज तुम पर ना कोई खौफ तारी होगा ना तुम गमगीन होंगे। मेरे वो बंदे जो हमारी आयतों पर ईमान लाते थे और फरमाबरदार रहे थे, तुम भी और तुम्हारी बीवियां भी खुशी से चमकते चेहरों के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओ। उनके आगे सोने के प्याले लाए जाएंगे और उस जन्नत में हर वो चीज होगी जिसकी दिलों को ख्वाहिश होगी और जिसने आंखों को लज्जत हासिल होगी और उससे कहा जाएगा कि उस जन्नत में तुम हमेशा रहोगे। जब एक बंदा जन्नत में चला जाएगा और उसके रिश्तेदारों से उसका मकाम जरा निचला होगा, समझ लीजिए
دادا جی اوپر ہے، بہت اونچے مقام پر ہے، اور اس کے پوتے کو یا اپنے ہی بیٹے کو نیچے کا مقام ملا، اب رشتہ دار تو ہے، رشتہ بھی خون کا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے پر فضل یہ کرے گا کہ اس کی رشتہ داروں کی نیکی کی وجہ سے، چونکہ وہ اوپر ہے اور وہ نیچے کا درجہ بڑھا کے اس کے ساتھ شفٹ کر دے گا، سبحان اللہ۔ تو جو نچلے مقام والا ہے اوپر والے مقام پر خود بخود شفٹ ہو جائے گا، تو ملاقات ہوگی، بات چیت ہوگی، کھانے بنیں گے، تکیے لگیں گے، جام چھلکیں گے، شراب پی جائے گی، لیکن وہ ایسی گندی شراب نہیں بنے گی جس کو پی کر انسان اور جانور میں فرق سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، جس سے نشے نہیں چڑھیں گے، ایسی لذت کی ہر بار پینے کے بعد نیا ہوگا، اور یہ بھی ہوگا کہ لوگ دنیا کی باتیں بھی کریں گے، اس کا کیا حال ہے، وہ کہاں تھا، فلاں تھا، اس کو تو اسلام کی دعوت دی لیکن وہ کہاں ہے، بولیں گے ہاں اس نے کفر کیا بیچارہ، وہ جہنم میں چلا گیا، نہیں آیا اپنے ساتھ، تذکرے ہوں گے، تو بہرحال جنت میں لوگ ملیں گے، دوست احباب سے ملیں گے، رشتہ داروں سے ملیں گے، اور نیک لوگوں کی وجہ سے نچلے لوگوں کی مجلس سے اوپر والوں کے مقام پر لے کے جائیں گے، اس لیے اچھی صحبت اختیار کرنی چاہیے۔